حتمی شکل دے سکیں۔ آزادی مارچ کشمیر نہیں چوروں کی آزادی کے لیے ہو رہا ہے، جیل والے ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا مسئلہ حلوہ ہے، فردوس عاشق آبان کی گھنگرج۔ جیل سے لکھے گئے خطوط ہیں، ان کا حشر بھی انشاءاللہ قطری خط جیسا ہوگا۔ مولانا کے آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہے، شہباز وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے 2 بڑی گرفتاریوں کی پیش گوئی کر دی، کہا 6 بندے NRO مانگ رہے ہیں۔ اگر 6 آدمی عمران خان رہا کر دے یہ ٹھس ہو جائے ساری تحریک۔ 6 میں جب کہتا ہوں 4 گرفتار ہیں 2 ہونے والے ہیں۔ 3 مہینے اہم ہیں، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ 15 جنوری کے بعد 30 جنوری تک عمران خان چھا جائے گا اور ان تمام مسائل کو بآسانی حل کر لے گا۔ آزادی مارچ آئین اور پارلیمان کو بچانے کے لیے ہے، جیل جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ نواز شریف کے داماد محمد صفدر کہتے ہیں ملک کو بچانے کے لیے نیا نظریہ ووٹ کو عزت دو اور عوام کو جینے دو ہے۔ وہ آئین کو نہیں مانتے، ان سے آزادی کی یہ تحریک ہے، ووٹ کو عزت دو۔ اس سلسلے میں عدالتوں میں بھی جانا پڑے گا، جیلوں میں بھی جانا پڑے گا، تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ عدالت نے خورشید شاہ کو اسپتال منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی، نیب کو طبی سہولیات فراہم کرنے کا حکم، ضرورت پڑنے پر اسپتال منتقل کرنے کی ہدایت۔ جج ویڈیو اسکینڈل، FIA کا مرکزی ملزم ناصر بٹ کے گھر چھاپا، بھاری مقدار میں ناجائز اسلحہ برآمد کرنے کا دعویٰ۔ ناصر بٹ کہتے ہیں FIA جتنا مرضی ہراساں کر لے، گواہی دینے سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ تجارتی اور مالیاتی خساروں پر قابو پا لیا، 3 ماہ میں اسٹیٹ بینک سے کوئی قرض نہیں لیا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری میں $340 ملین کا اضافہ ہو گیا۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی پریس کانفرنس، چیئرمین FBR شبر زیدی کہتے ہیں اب اقامے کا غلط استعمال نہیں ہو سکے گا، دبئی لینڈ اتھارٹی جائیدادوں کی تفصیلات بھی فراہم کرے گی۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کا پہلا مرحلہ مکمل، سی پیک جوائنٹ ورکنگ گروپ چینی وفد کی پاکستان آمد، مراد سعید سے ملاقات۔ دوسرے مرحلے میں مغربی روٹ پر کام تیز کرنے کا فیصلہ، 1270 کلومیٹر پر شاہراہ تعمیر کی جائے گی۔ We've always been open to discussing anything with Saudi Arabia. Saudi Arabia is our neighbor. We're going to be here together permanently. We don't have any choice but to talk to each other, and we have been open to talking to Saudi Arabia either directly or through intermediaries. We've never rejected any intermediary. ایران سعودی تناؤ کم کرنے کے لیے پاکستان کی کاوشیں، ایران کا ثالثی کے لیے وزیراعظم عمران خان کی کوششوں کا خیر مقدم، سعودی عرب سے مذاکرات اور ثالثی پر تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا صحافی کو جواب، کہا تہران اور ریاض کے پاس مذاکرات کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ڈینگی وبائی شکل اختیار کر گیا، ملک بھر میں مریضوں کی تعداد 27,000 سے تجاوز کر گئی، اسپتال مریضوں سے بھر گئے، قاتل مچھر سے لوگ خوف زدہ، حکومت تدارک میں ناکام۔ لوگ ڈینگی سے مر رہے ہیں لیکن ڈاکٹرز کو احتجاج سے فرصت نہیں، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ڈاکٹرز کا احتجاج مسلسل جاری، OPDs بند، دور دراز سے آنے والے مریض رل گئے، کوئی سننے والا نہیں۔ کوئی چیک اپ نہیں ہوا، انہوں نے یہی کہا ہے کہ ڈاکٹر ہڑتال پہ ہیں، تو آپ لوگ نا جب ہڑتال کھلے گی تب بھی آنا ہے۔ تھائرائڈ ہے اس لیے میں آئی ہوں، تو ڈاکٹر تو کوئی ملا ہی نہیں، پرچی نہیں بنی۔ تو جو یہ اوتھ لیتے ہیں ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، کم از کم اس اوتھ کا ہی یہ لحاظ کریں اور مریضوں کو تو کم از کم یہ چیک کریں۔ اینکر مرید عباس قتل کیس میں اہم پیش رفت، 2 گواہوں نے ملزم عادل زمان کو شناخت کر لیا، خضر حیات کے ساتھ عاطف زمان سے پیسے لینے گئے تھے، گواہوں کا بیان۔ کراچی میں روزانہ شہری لٹ رہے ہیں لیکن پولیس چیف چین کی بانسری بجانے میں مصروف، کہتے ہیں کراچی میں اسٹریٹ کرائم کم ہوئے، تعداد بڑھا چڑھا کر پیش کی جاتی ہے۔ یہاں پہ اس طرح کے ماحول کو بلٹ اپ کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھئی کراچی کا اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ بے شک CPLC سے وہ فگرز لے لیں
यहाँ पे जो वायलेंट क्राइम है वो 30% पिछले साल से कम है। गुटखा खाने का बढ़ता हुआ रुझान, पाकिस्तान में मुंह का कैंसर बढ़ गया। सिर्फ कराची के अस्पतालों में यौमिया 1 दर्जन से जायद मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। मरीज अजियतनाक मौत का शिकार होता है। तिब्बी माहिरीन, जो मुंह की झलियां हैं वो इतनी नाजुक होती हैं, वो उसमें आके जब आप च्यूइंग करते हैं वो आप उसको रप्चर कर देती है, वो आपके ज़रा ज़रा वहाँ पे जमा होती है तो वो एक ज़ख़म बन जाता है, फिर ज़ख़म से वो कैंसर की तरफ मुलव्वस हो जाता है। दवाएं महंगी, खाने पीने की हर शय महंगी, अब तालीम भी महंगी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने नए तालीमी साल से किताबें महंगी करने की ठान ली। वालिदैन में तशवीश की लहर दौड़ गई। स्कूलों की फीस ज़्यादा है और उसके बाद बुक्स के अभी रेट इतने अप हैं कि वो हम अदा नहीं कर सकते। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुकें हैं, उनकी भी प्राइसें बढ़ गई हैं, तो अब हमें पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया बच्चों को। इनकी पूरी मेडिकल ट्रीटमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो पाकिस्तान बैतुल-माल बेयर करेगा। तहसील हासिलपुर के कमसिन बच्चे की बीमारी का मामला आज न्यूज बना। गरीब वालिदैन की आवाज। बैतुल माल ने नोटिस लेकर इलाज की यकीन दहानी करा दी। निजी फलाही तंजीम ने भी पाकिस्तान में इलाज ना होने पर बैरून मुल्क इखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान कर दिया। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ के डॉक्टर से बात करके इसकी वीडियो उनको दिखाऊं और फिर इंशाल्लाह इस बच्चे का इलाज मैं स्वीडन या नॉर्वे के किसी बहुत बड़े अच्छे हॉस्पिटल से करवाऊंगा। अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं लियाबत। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिन्होंने अपने आबाई इलाके लाड़काना में बैठकर हुकूमत पर खूब तीरंदाजी की। कहा कि कठपुतली हुकूमत ने मुल्क में गरीब आवाम की जिंदगी अजाब बना दी है। ये हुकूमत तरक्की के नाम पर कराची में कब्जा करना चाहती है। अब कराची वाले इस बात का जवाब दें कि वो खुद क्या चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का हुकूमत मुखालिफ कारवां, बिलावल भुट्टो की क़यादत में रैली लाड़काना पहुंची। जहां बिलावल ने हुकूमत पर तीरंदाजी कर दी। कहा कठपुतली हुकूमत कराची पर कब्जा चाहती है। एहलियाने कराची जवाब दें कि वो क्या चाहते हैं। आप कराची में कब्जा कर सकते हैं क्या? आप उनको इजाजत देंगे? आपका कैपिटल पर वफाक को आप कब्जा करने देंगे? अगर नहीं तो सब मिलके निकलो, वफाक को जवाब दिलवा दे कि मत्सू बिलावल भुट्टो ने महंगाई के खिलाफ भी आवाज उठाई। बोले कि इस हुकूमत ने गरीब का मुआशी कत्ल किया। महंगाई की जंग के खिलाफ भुट्टो के नवासे का साथ दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हुकूमत मुखालिफ जलसों का भी ऐलान कर दिया। कहा 18 अक्टूबर को पीपल्स पार्टी कराची में जलसा करेगी। ये जलसे कराची से शुरू होकर मुल्क भर में फैलेंगे। इधर मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार बैठी है। नून लीग ने पार्टी कायद की हिदायत पर मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च में शिरकत का फैसला कर लिया। आज़ादी मार्च में शिरकत का लाहे अमल तय करने के लिए पार्टी का वफ्द कल मौलाना फजल रहमान से बैठक लगाएगा। इस बात का ऐलान लाहौर में सदर शहबाज शरीफ की सरबराही में होने वाले इजलास के बाद एहसन इकबाल ने मीडिया ब्रीफिंग में किया। एहसन इकबाल ने बताया कि पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का खत इजलास में पढ़कर सुनाया। पार्टी का एक सीनियर वफ्द नवाज शरीफ साहब का ये खत लेकर फौरी तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करेगा ताकि हम इस आज़ादी मार्च के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे सकें। एहसन इकबाल का कहना था कि नवाज शरीफ ने मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अवामी मसाइल, मईशत और अमन व अमान के हवाले से हुकूमती कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए पार्टी को हुकूमत के खात्मे तक तहरीक चलाने की भी हिदायत की। और मईशत के तबाह होने से जिस तेजी से लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम्स में इजाफा हो रहा है, ये वो हालात हैं जो वो पाकिस्तान नहीं जिसकी हम बुनियाद रख के गए थे। एहसन इकबाल का कहना था कि पार्टी इजलास में शहबाज शरीफ की क़यादत बारे फैलाई जाने वाली बेबुनियाद खबरों की मजम्मत करते हुए वाज़ेह किया गया कि शहबाज शरीफ की क़यादत पर पार्टी कायद और तमाम रहनुमा मुकम्मल एतमाद करते हैं। शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं
वो पार्टी के कायद जनाब नवाज शरीफ साहब के एतमाद के साथ और पार्टी की जनरल काउंसिल के एतमाद के साथ सदर मुंतखब हुए हैं और वो सदर हैं और सदर रहेंगे। उन्होंने बताया कि आज़ादी मार्च की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान ही करेंगे, ताहम मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें अपने प्रोग्राम के मुताबिक उनके साथ शरीक होंगी। जेल से मिलने वाले खत का भी वही हाल होगा जो कतरी खत का हुआ। मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की तनकीद, कहा जेल से आई चिट्ठी को ऐसे देखा जा रहा है जैसे समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का हॉकी मैच हो। उन्होंने ये भी कहा कि फजलुर रहमान का मसला हलवा है, जहां हलवा होगा वो वहीं जाएंगे। जेल से लिखे गए खतूत हैं, उनका हशर भी इंशाअल्लाह कतरी खत जैसा होगा। इनके पास अवाम की ताकत और पजीराई होती तो इन्हें मासूम सपारा पढ़ने वाले मदरसों के बच्चों को अपनी सियासी भट्टी का ईंधन ना बनाना पड़ता। एक भाई कोट लखपत में, दूसरा भाई मॉडल टाउन में, फासला चंद फरलांग का। तो खतों किताबत चिट्ठियों के जरिए ये पहली हुकूमत है जो पिछली 3 दहाइयों के बाद ये पहली हुकूमत है जो डीजल के बगैर इंशाल्लाह चलती रहेगी और चलेगी। वजीर रेलवे शेख रशीद ने 2 बड़ी गिरफ्तारियों की पेशगोई कर दी। कहा कि 6 बंदे NRO मांग रहे हैं। शहबाज विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। मौलाना के आगे कुआं और पीछे खाई है। उन्होंने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को अहम करार दिया। कप्तान की खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि साबिक हुक्मरान महंगाई हक महर में दे गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं ये अल्लाह को पता है। मौलाना फजलुर रहमान क्या इस मुल्क में चाहते हैं, ये फंसने जा रहे हैं। उनके आगे कुएं हैं, पीछे खाई है। मैंने आपको कहा था 3 महीने अहम है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के 15 जनवरी के बाद 30 जनवरी तक इमरान खान छा जाएगा और इन तमाम मसाइल को बआसानी हल कर लेगा। और शहबाज शरीफ कभी इधर है कभी उधर है, यूं भी है और यूं भी है। इकॉनमी को अल्लाह के फजलो करम से डिफॉल्ट होने से मुल्क को बचा लिया है। इमरान खान ने अल्लाह की मदद से करेंसी को इस्तेकाम दिया है। इमरान खान ने इंटरनेशनली अपने आप को मनवाया है। इमरान खान ने मोदी को वहां जाके ला के फंसा दिया है, न जाए रफ्तन न पायमाना। जमीयत उलमा इस्लाम के पुरअमन मार्च को कोई कमजोरी ना समझे, मौलाना फजलुर रहमान की ललकार। कहा हुकूमत दावा करती थी कि हजारों लोग बाहर से नौकरियां करने आएंगे, लेकिन सिर्फ चेयरमैन FBR और गवर्नर स्टेट बैंक ही नौकरी करने आए। वफाकी वज़रा के एक्शन पर रिएक्शन दिया कि हुकूमत होश के नाखुन ले, हम इंतकाम लेने की सलाहियत रखते हैं। हम आइन और कानून के दायरे में रहते हुए किसी भी इदारे के साथ तसादुम से एहतराज करते हुए पुरअमन एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं। हमारे पुरअमन जज्बात को कमजोरी मत समझे। कल नाखुन ने अगर आपने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, हमसे हमारा आईनी और कानूनी हक छीनने की कोशिश की, इंसानी हुकूक पामाल किए, तो फिर हम भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसका इंतकाम लेने की सलाहियत रखते हैं और उस सलाहियत को इस्तेमाल किया जाएगा। 1 करोड़ नौकरियों की जो उम्मीद दिलाई गई थी, नौकरियां देना तो दूर की बात, 1 साल में 15 से 20 लाख नौजवानों को बेरोजगार कर दिया गया। लोग नौकरियों के लिए पाकिस्तान आएंगे, लेकिन पूरे साल में 2 बंदे नौकरियों के लिए बाहर से आए, एक स्टेट बैंक का गवर्नर और एक FBR का चेयरमैन। बुलेटिन में अब खबर शामिल करते हैं 2 बड़ों के टेलीफोनिक राब्तों की। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर राब्ता किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ की जानिब से आज़ादी मार्च की हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुश्तरका हिकमत अमली के साथ आज़ादी मार्च पाए तकमील तक पहुँचाने पर तबादला ख्याल किया गया। हर जुम्मा एक नए मौलवी से निमटना पड़ता है। कभी मौलाना फजलुर रहमान, कभी कोई और मौलवी अमन खराब करने निकल आता है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की घनगरज। कहा पाकिस्तान की कामयाबी के लिए यहाँ क़याम अमन जरूरी है। पाकिस्तान का एक तबका है जो मुल्क को बहुत पीछे ले जाना चाहता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट है कि हमें कभी जो है वो हर जुमे को हमें एक नए मौलवी से डील करना पड़ता है। कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब निकल आते हैं, कभी फलाना निकल आता है। तो ये जो पाकिस्तान को एक
10-15 साल अमन के चाहिए, हमें 10-15 साल चाहिए जिसमें हम कंसिस्टेंसी में एक पॉलिसी अपनी बना सकें, उसको ले जा सकें। हमें जो है वो एक ऐसा दौर चाहिए जिसमें आप अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। आज़ादी मार्च आयन और पार्लियामान को बचाने, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। नवाज शरीफ के दामाद मोहम्मद सफदर की वजाहत, कहा कि इस तहरीक के बायस अदालतों या जेलों में भी जाना पड़ा तो जाएंगे। ये मुल्क दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर बना है। अब इस मुल्क को बचाने के लिए नया नजरिया वोट को इज्जत दो और अवाम को जीने दो है।